Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about the major elements related with the formation of Rajya Sabha, under which we discussed about the maximum number of members which can be there in Rajya Sabha along with the present members. We discussed about the nominated members, the elected members, along with that the members related with different states, means the different members who are representing different states of the country. Along with that we discussed about the tenure of the members of Rajya Sabha under section 83rd of the Indian Constitution. Along with that the qualifications to be a member of Rajya Sabha under section 84th of the Indian Constitution. And in the last we concluded our discussion with chairman and deputy chairman. The provisions related with the appointment, removal and the powers of chairman and deputy chairman are mentioned in section 89, 90, 91 and 92 of the Indian Constitution. Okay, so we can say that 89th section, 90th section, 91st and 92nd section all are related with the speaker or deputy speaker or chairman or deputy chairman of Rajya Sabha. Okay, vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. After completing all this kind of things, here as the next we are going to discuss about the powers of the parliament. Actually there are two types of government in the democracy, which are direct or indirect form of democracy. The indirect democracy or representative democracy is further divided in two forms, which are the parliamentary and the presidential. In the presidential form of democracy, we generally find the power centered in the hands of the president, but in the parliamentary form of democracy, the power centered in the hands of the parliament, means we can say that parliament is authorized for making laws for the administration of the country. In India also we are having the parliamentary form of government. What I mean to say that is कि हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है, और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम अथॉरिटी पार्लियामेंट होती है. सिंपल सा टर्म ये है कि इंडिया में सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पार्लियामेंट के हाथ में, यानी सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज़ पार्लियामेंट, मीन्स लोकसभा and Rajya Sabha along with president. Okay, so now the question is, which are the powers provided to the parliament by the constitution which make the parliament the supreme authority of administration. यानी सारी पावर्स जो पार्लियामेंट के हाथ में हैं वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन की सुप्रीम अथॉरिटी बनाती है. ओके, सो are you getting me what I mean to say that? I mean to say that here we are going to discuss about the powers of parliament, यानी इंडिया में पार्लियामेंट के पास में कौन कौन सी पावर्स हैं. तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विद सेपरेट डिस्कशन ऑफ द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्य सभा. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, द टॉपिक इज द powers of parliament. So which are the powers provided by the constitution to the parliament? Actually, according to section 245, 266, section 75th, 368, 352, 54 and 66,
section 61, 67, 124, different kind of powers are provided to the parliament. So which are these powers? We will discuss one by one. Now the first thing, parliament is also known as the legislature. Legislature means the organ of the government which is related with the formation of laws. यानी पार्लियामेंट का दूसरा नाम लेजिस्लेचर है, विधायिका, जिसका मतलब है कि ये कानून बनाती है. ओके, यानी ये गवर्नमेंट का लॉ फॉर्मिंग ऑर्गन होता है. इज दैट क्लियर? सो हियर द फर्स्ट पावर इज द लेजिस्लेटिव पावर. ओके, पार्लियामेंट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो फर्स्ट पावर है दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 of the Indian Constitution, Parliament is authorized, means in India the Parliament is authorized by the Indian Constitution to form laws. okay, यानी हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है लॉज बनाने के लिए. okay, Parliament can form laws on the subject mentioned in Union List, Concurrent List, and along with that sometime on the state list also. Okay, in special circumstances on the subject mentioned in the state list also. okay, तो पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में लॉ फॉर्मिंग ऑर्गन है, यानी इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी. ओके, तो सेक्शन 245 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया में पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है इंडिया की पब्लिक, यहाँ के सिटीजन्स के लिए कानून बनाने के लिए. ओके, यानी पार्लियामेंट इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. ओके, और पार्लियामेंट जनरली यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है. अलॉन्ग विद दैट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है. ओके, जनरली यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाती है. अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे माइंड में रखना है, द concurrent list is the list, or we can say that the subjects which are included in the concurrent list are matter of law formation both for the parliament or for the state legislature. okay, यानी concurrent list के ऊपर law formation का right दोनों के पास, state legislature और parliament दोनों के पास में होता है. इसमें यदि कोई डिस्प्यूट होता है, इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट ऑन एनी लॉ फॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट related with the concurrent list between the central government or the state government, or we can say that between the parliament or the state legislature, then the law formed by the parliament will be acceptable except the law formed by state legislature. ओके, यानी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकते हैं, लेकिन यदि इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर यदि दोनों मिलकर दोनों कानून बनाते हैं, यानी लॉ फॉर्मेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के द्वारा होता है, उसमें यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो लॉ प्रिवेल करेगा विच इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ होगा. इज दैट क्लियर? ओके, so the first power of the parliament is the legislative power which is related with the formation of laws. Means both the houses of the parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the house of the people and council of state is responsible for the formation of laws for the people of the country, which is generally related with the union list and concurrent list, and sometime in special circumstances with the state list also. Is that clear, guys?
तो सबसे फर्स्ट पावर हुआ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब द पावर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लॉज। और ये पावर जो है वो सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दी गई है, जिसमें जनरली यूनियन लिस्ट और कंकरन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ एज द नेक्स्ट पावर इज रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, so next power is the power of constitutional amendments. Okay, so according to the provisions of the Indian Constitution, Parliament is authorized to make amendment in most of the sections of the Indian Constitution. यानी पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया है कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट ऑफ सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकती है। ओके, यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि उसमें पार्लियामेंट से ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वो अपने अमेंडमेंट्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन की रियल सोल को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा पार्लियामेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल, किसी भी सेक्शन को हटाया जा सकता है, उसको प्लस किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? मीन्स इट कैन ऐड समथिंग, इट कैन रिमूव समथिंग और इट कैन alter something. Okay, so the power is the power of constitutional amendments. Okay, power of constitutional amendment. According to section or article 368 of the Indian Constitution, Parliament can amend, add or remove or change certain most of the sections of the Indian Constitution. यानी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सेक्शन को चेंज कर सकता है, उसमें प्लस कर सकता है, उसको हटा सकता है। इज दैट क्लियर? सो द पावर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को वो अकेले और समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है उसको हम 3 अलग अलग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अमेंड करते हैं। यानी पार्लियामेंट जो है वो 3 अलग अलग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस को अमेंड करता है। समटाइम पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट इन दी सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ सिंपल मेजॉरिटी। ओके, by passing a motion with simple majority of both of the houses, certain sections can be amended by the parliament. Okay, on the other hand, to amend some sections of the Indian Constitution, the parliament have to pass a resolution separately from both of the houses of parliament with 2/3 majority. Okay, and as the last one, the third point, to amend some sections of the Indian Constitution, the Parliament need consent of half of the present states along with 2/3 majority of both of the houses of Parliament. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस, जिनकी जो सेक्शंस जो हैं वो अपनी वैल्यू के बेसिस पे 3 डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनकी अकॉर्डिंग अमेंड्स किए जा सकते हैं। ओके, टू मेक अमेंडमेंट इन सर्टेन सेक्शंस पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज। यानी दोनों हाउसेज, देखो यहाँ पे एक बात आपको माइंड में रखनी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वली पावरफुल है इन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनमें अमेंड करने के लिए, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को दोनों हाउसेज से वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। ओके, उससे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले जो सेक्शंस होते हैं उनको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में दोनों हाउसेज से वो बिल पास होना कंपलसरी होता है।
Now to amend certain sections which are very important, especially the sections related with the federal structure of the country, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीज़न को इम्पैक्ट करता है, ऐसे सेक्शंस को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी जो प्रेजेंट स्टेट है इंडिया में, फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट वी आर हैविंग 28 स्टेट्स इन द कंट्री, तो उन 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट 14 स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा इस बिल को एक्सेप्ट करने के लिए प्रपोजल अपने यहाँ पास करके अपना एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पार्लियामेंट को भेजना होता है, यानी कम से कम हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो अपना कंसेंट यदि इसके फेवर में देते हैं, ओनली देन पार्लियामेंट कैन अमेंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? तो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइज इन दी हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, ये कम्प्लीटली पार्लियामेंट का ही पावर है, उसी के पास में होता है। और ये पावर सेक्शन 368 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दिया गया, जिसमें पार्लियामेंट 3 अलग अलग प्रोसेस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस में अमेंडमेंट कर सकती है। इन सम सेक्शंस विद सिंपल मेजोरिटी, ऑन द अदर हैंड इन सम सेक्शंस विद 2/3 मेजोरिटी, एंड इन सम सेक्शंस विद 2/3 मेजोरिटी along with the consent of half of the present states. Is that clear, guys? So this is what we call power of constitutional. Now if we talk about the next power of the parliament, then it is the executive power. Guys, section 75th of the Indian Constitution, or we can say that article 75th of the Indian Constitution is related with the executive power of the parliament. Okay, यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 75th सेक्शन 3rd के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर पार्लियामेंट के हाथ में। व्हाट आई मीन टू से दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। ओके, यानी एग्जीक्यूटिव कंप्लीटली आंसरेबल है पार्लियामेंट के लिए। ओके, इन मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर लोकसभा इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर के मैटर में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। हाउ? लेट अस क्लियर दैट। ओके, सो पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट का नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जीक्यूटिव power. Okay, the executive power of the parliament. Article 75th section 3rd of the Indian Constitution. According to this section, the executive is answerable towards the parliament, especially towards Lok Sabha, to control the executive, to control the ministers of the council of minister. The members of Lok Sabha can pass adjournment motion, okay, along with that they can also pass non confidence motion. They can ask them questions about their departments. Okay, they can ask them questions about their respective departments. यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर के अकॉर्डिंग जो इंडियन एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, अपने जो भी वर्क्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, जिसमें स्पेशली जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में है। लोकसभा एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और क्वेश्चंस पूछ करके उनको कंट्रोल करते हैं उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के बारे में। ओके, इफ द लोकसभा पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन देन द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। यानी पार्लियामेंट के पास में पूरा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का। ओके, यदि लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पास करती है अगेंस्ट दी एग्जीक्यूटिव, दैट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे। यानी पूरी सरकार जो है वो लोकसभा के विश्वास पर, उसके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है। ओके,
In this matter, Rajya Sabha is less powerful. How? Actually, the Rajya Sabha is not allowed to pass the नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यानी वो एडजर्नमेंट मोशन और क्वेश्चंस से रिलेटेड पावर को यूज़ कर सकते हैं, वो मिनिस्टर्स को उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू पास द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. दिस पावर इज ओनली गिवन टू दी लोकसभा. ये पावर सिर्फ लोकसभा के पास में है. ओके, एंड दैट्स वाई राज्यसभा इज लेस पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ लोकसभा इन मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर. तो एग्जीक्यूटिव पावर इन सिंपल सा पॉइंट ये है कि सेक्शन 75 के अकॉर्डिंग या आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव जो वो पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली लोकसभा के लिए. लोकसभा उनको एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन और क्वेश्चंस के जरिए कंट्रोल करता है. यदि लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है अगेंस्ट द executive, then the whole council of minister along with prime minister will have to resign. तो ये पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है. Is that clear? Now after that the next power is related with the finance. Okay, the financial power of the parliament. So guys, section 266 of the Indian Constitution provide supreme control of parliament over the consolidated fund of the country. यानी जो भी पब्लिक मनी या जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास में होता है, कलेक्ट होता है बाय imposing different kind of taxes, by the recovery of different kind of loans is known as the consolidated fund of the country. और इस पूरे consolidated fund के ऊपर supreme authority या supreme control होता है parliament का. Means without the consent of the parliament the government won't be able to use that money. ओके, बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के गवर्नमेंट उस मनी को यूज़ नहीं कर सकती. ओके, एंड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द फाइनेंशियल पावर. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, फाइनेंशियल पावर which is mentioned in section article 266 of the Indian Constitution. ओके, और इसके अकॉर्डिंग पब्लिक मनी को तब तक यूज़ नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट उसके लिए लॉ नहीं बनाते. What I mean to say that is the parliament make laws and in this way authorize the government to use the public money. Okay, and that's why the government, or we can say that the executive, the ministers prepare a budget and put it in front of the parliament for the consent of both of the houses of parliament. In the matter of financial power, Lok Sabha is more powerful in comparison of Rajya Sabha. Okay, यानी फाइनेंशियल पावर के मैटर में भी लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 109 of the Indian Constitution, money bill can be only presented in Lok Sabha. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है. ओके, एंड आफ्टर द कंसेंट ऑफ लोकसभा within 14 days राज्यसभा have to pass this bill. Okay, after the consent of the Lok Sabha within 14 days राज्यसभा have to pass this bill. और यदि राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है then this bill will be sent to the president or for the consent of the president after 14 days, and after the consent of the president, after signature of the president, it will be accepted to be passed by both the houses of parliament. यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि लोकसभा में ही मनी बिल को प्रेजेंट किया जा सकता है, ये राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. जैसे कि बाकी बिल्स जो होते हैं वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. और ये प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में. और इसके अकॉर्डिंग एक बार लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा के पास में भेजा जाता है और विदिन 14 डेज राज्यसभा को अपना कंसेंट देना होता है. यदि राज्यसभा उस बिल में कोई भी ऐसा चेंज करते, मीन्स इफ राज्यसभा सजेस्ट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन दी
in the money bill which is not acceptable by Rajya Sabha, by Lok Sabha, sorry, or Rajya Sabha, if Rajya Sabha does not pass this bill within 14 days, तो ये बिल सीधे आफ्टर 14 डेज प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही ये बिल दोनों हाउसेज से पास माना जाता है। यानी राज्यसभा के पास में राइट है सिर्फ 14 डेज तक इस बिल को अपने पास रखने का, उसके बाद में ये बिल अपने आप दोनों हाउसेज के पास माना जाता है। तो इसी वे में राज्यसभा फाइनेंशियल मैटर में लोकसभा से लेस पावरफुल है। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज रिलेटेड विद द पावर ऑफ इलेक्शन, ओके, or we can say that the special powers provided to the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, okay, in which the first point is related with the election, okay. We can say that power to serve as an electoral college or power of election, okay, or the election power. According to section 54 or article 54 of the Indian Constitution, the elected members of both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, take part in the election of president, okay, or we can say that they cast their vote for the election of प्रेसिडेंट। यानी सिंपल सा टर्म ये है कि सेक्शन 54 जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है उसमें क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाया जाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट डालते हैं। इज दैट क्लियर? सो the president is elected by the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha along with the elected members of state legislatures, okay. Along with that section 66, okay, or article 66 of the Indian Constitution says that the elected members of both the houses of parliament, means the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, take part in the election of वाइस प्रेसिडेंट, ओके। यानी पावर ऑफ इलेक्शन के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो 2 पोस्ट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का काम करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट एंड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ओके। फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन और आर्टिकल 66, ओके। यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उनके इलेक्शन में वोट डालते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। एंड इन द मैटर ऑफ इलेक्शन पावर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इक्वल, यानी ये पावर दोनों के पास में इक्वली डिवाइडेड है, ओके। नाउ द next power is the power of impeachment, okay. Under this power both the houses of parliament are authorized to remove the president, vice president, judges of supreme court and judges of high court from their post, okay. यानी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके मेंबर्स स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट। यानी अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव करती है लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक ही कंट्रोल है कि वो इम्पीचमेंट के जरिए उनको उनके पद से हटा सकते हैं, ओके। सो व्हाट आई मीन टू से दैट इज
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द Lok Sabha and Rajya Sabha by passing a motion can remove the president from his post according to section 67 of the Indian Constitution. The members of Lok Sabha and Rajya Sabha with a special majority, with 2/3 majority or majority of the members, total number of members, okay, they can pass a motion to remove the वाइस प्रेसिडेंट. लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही रखा जा सकता है. ओके, इसके अलावा टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू रिमूव द प्रेसिडेंट, मोशन कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट एज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मोशन लाने का राइट सिर्फ राज्यसभा के पास में होता है. उसके बाद ये दोनों हाउसेस से पास होना कंपलसरी है, यानी राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से और लोकसभा का कंसेंट मिलना भी उसमें जरूरी होता है. इज दैट क्लियर? अलॉन्ग विद दैट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 124 सेक्शन 4 of the Indian Constitution, both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, can pass a motion to remove the judges of Supreme Court from their post. Okay, तो judges of Supreme Court जो हैं वो हटाए जा सकते हैं by passing a motion by both the houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and this is what we call power of impeachment of the parliament. और इस मैटर में भी, इस पावर में भी लोकसभा और राज्यसभा इक्वली पावरफुल है. सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के मैटर में प्रिविलेज जो है वो राज्यसभा के लिए है कि वो मोशन सिर्फ राज्यसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है. इज दैट क्लियर गाइज? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग which is related with the special powers which are only granted to Rajya Sabha, not to Lok Sabha. Okay, so guys, in this way we discussed about the legislative power, the executive power, power of constitutional amendment, financial power, power related with election and power related with impeachment. ठीक है, इन सब के अलावा भी एक पावर है जो I think we should discuss first that power rather than to discuss the special powers provided to Rajya Sabha, and that is the power related with emergency. Okay, the power related with emergency. So guys, according to Article 352 of the Indian Constitution, President can impose emergency in the nation, means throughout the country or in a particular part of the country in the situation of external war, external invasion or armed revolt in the internal part of the country. यानी यदि सिचुएशन क्रिएट होती है एक्सटर्नल वॉर की, एक्सटर्नल इन्वेजन की, या फिर कंट्री के एक बहुत बड़े पार्ट में आर्म्ड रिवोल्ट होता है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकता है पूरे कंट्री में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन में. ऐसा ऑलरेडी हुआ है, जैसे इन द सिचुएशन ऑफ इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, मीन्स ऐसे सिचुएशन जो है वो इंडिया में इंडो चाइना वॉर में, फिर इंडो पाक वॉर 1965 1972 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुई है. और द फर्स्ट प्रेसिडेंट was related with the implementation of emergency in the country was सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन. ओके, तो ऐसी इमरजेंसी ऑलरेडी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, लेकिन इस इमरजेंसी का मिसयूज हुआ था. यानी पहले जो एक्चुअल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए थे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी, उसका मिसयूज किया गया था 1975 में, व्हेन द नेशनल इमरजेंसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो मिसयूज हुआ था उसको सुधारने के लिए 1978 में अमेंडमेंट किया गया था, 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 4 मेजर प्रोविजंस जोड़े गए थे, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट रखा गया था टू इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी इट इज़ कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गेट द रिटन कंसेंट ऑफ द कैबिनेट. यानी
प्रेसिडेंट जो है वो बिना रिटन कंसेंट फ्रॉम द कैबिनेट लिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट, दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली फॉर 1 month विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। यानी उसमें सेकेंड पॉइंट ये रखा गया कि ऐसी इमरजेंसी जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें पार्लियामेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और यही इस इमरजेंसी पावर ऑफ द पार्लियामेंट का पार्ट है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विल पास अ मोशन with 2/3 majority in support of that emergency. Only then it can be implemented for more than 1 month. यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी इमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जाती है वो पार्लियामेंट के कंसेंट के साथ में, यानी यदि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा का कंसेंट मिलता है तो इसको एक साथ 6 month के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 6 month के बाद यदि पार्लियामेंट उसको फिर से कंसेंट देता है, यानी दोनों हाउसेस मोशन पास करके फिर से इस बिल को सपोर्ट करते हैं, तो इसको अगले 6 month के लिए इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन यदि लोकसभा और राज्यसभा इस एमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो आफ्टर 1 month इट विल बी ऑटोमेटिकली मीट टू एन एंड, यानी अपने आप ही हट जाएगी यदि पार्लियामेंट का कंसेंट, लोकसभा और राज्यसभा का कंसेंट इसको नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट, यदि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो चुका है और ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी इंप्लीमेंट होती है, इन सच अ सिचुएशन राज्यसभा इज ऑथराइज्ड टू पास दैट बिल, यानी यदि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद राज्यसभा का कंसेंट लेना जरूरी है टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर 6 months, ओके। और इस इमरजेंसी में लोकसभा के टेन्योर को इंक्रीज भी किया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइज? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग, टू remove this emergency, or we can say that to end this emergency, if Lok Sabha will pass a motion with simple majority then it can be ended। यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि एमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 6 month से पहले भी यदि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करता है इस एमरजेंसी को हटाने के लिए, देन इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हटाया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइज? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एमरजेंसी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा आर इक्वली पावरफुल, ओके। सो दिस इज द एमरजेंसी पावर ऑफ पार्लियामेंट जो सेक्शन 352 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को दी गई है, और ये इम्प्लीमेंट होती है इन द सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन एंड आर्म्ड रिवोल्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, the special powers of Rajya Sabha. Actually, 2 special powers are provided to Rajya Sabha which are not provided to Lok Sabha. According to section 249, or we can say that according to article 249 of Indian Constitution, Rajya Sabha is authorized to declare any law passed by to declare any subject of state list of the national importance। यानी राज्यसभा के पास में ये राइट होता है कि राज्यसभा किसी भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है, एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट विल हैव अ राइट टू फॉर्म लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग के साथ में मोशन पास करके किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर करती है तो पार्लियामेंट को उसके ऊपर कानून बनाने का राइट मिलता है। ऐसा राज्यसभा एक बार में 1 year के लिए कर सकती है, एंड इफ राज्यसभा वांट देन इट कैन इंक्रीज द टाइम लिमिट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, यानी ये पावर आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्यसभा के पास में है, ऐसा लोकसभा नहीं कर सकती। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 312, to start any new all India service, it is compulsory for the executive, for the Prime Minister and his Council of Minister to get the consent of the Rajya Sabha। यानी राज्यसभा जो है वो
2/3 मेजोरिटी के साथ में, स्पेशल मेजोरिटी के साथ में बिल पास करके प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंसेंट देता है किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विस लाइक IAS, IPS, IFS को शुरू करने का। यानी प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द कंसेंट ऑफ राज्यसभा कैन नॉट स्टार्ट एनी न्यू ऑल इंडिया सर्विस, यानी किसी भी न्यू सिविल सर्विस को शुरू करने के लिए राज्यसभा का कंसेंट लेना जरूरी होता है फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दिस पावर इज नॉट प्रोवाइडेड टू लोकसभा, इट इज ओनली रिलेटेड विद राज्यसभा। तो दीज आर द 2 स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 249 related with the declaration of subject of state list of the national importance, and article 312 related with the start of new all India service. Is that clear, guys? So in this way, in this video we discuss about the powers of the parliament, यानी आप इसमें ये कह सकते हो कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर पावर्स ऑफ लोकसभा, पावर्स ऑफ राज्यसभा। आपको इनको अलग अलग लिखना पड़े या फिर इनको एक साथ लिखना पड़े, देयर इज़ नो मैटर ऑफ दैट। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। यदि आप पार्लियामेंट की पावर्स को लर्न करते हैं देन द पावर्स रिलेटेड विद लोकसभा एंड राज्यसभा विल बी ऑटोमेटिकली लर्न, ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स बिल्कुल वही हैं जो पावर पार्लियामेंट के पास में है। ओके, बस सिर्फ जो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा उनको आपको सेपरेटली लर्न करना है। इज दैट क्लियर गाइस? If there will be any doubt in your mind while watching this video, then you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. And about the remaining things of this chapter, or we can say that about the remaining things related with the executive, the president, prime minister and his council of minister, we'll discuss in the next video. Okay, so till then, stay at your home. Be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.